بن قاسم پولیس نے اندھے قتل کا سراغ لگا کر ملوث ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ پولیس کے مطابق 2 ملزمان نے 14 فروری کو محمد سلطان کو سر پر سریہ مار کر قتل کر دیا تھا اور لاش جنگل میں چھپا دی تھی، جبکہ بن قاسم پولیس نے اندھے قتل کا سراغ لگا کر ملوث ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے۔ پولیس کے مطابق 2 ملزمان نے 14 فروری کو محمد سلطان کو سر پر سریہ مار کر قتل کیا تھا، جبکہ لاش کو جنگل میں چھپا دیا گیا تھا۔ بن قاسم پولیس نے اندھے قتل کا سراغ لگا کر ملوث ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے، جبکہ پولیس کے مطابق 2 ملزمان نے 14 فروری کو محمد سلطان کو سر پر سریہ مار کر قتل کیا، جبکہ قتل کے بعد لاش کو جنگل میں چھپا دیا تھا۔ ڈی آئی جی ویسٹ نے 3 تھانوں کے ہیڈ محرر معطل کر دیے ہیں۔ ہیڈ محرروں کے خلاف محکمہ جاتی کارروائی شروع کر دی گئی ہے، جبکہ معطل ہیڈ محرروں پر غفلت، لاپرواہی اور کرپشن کا الزام تھا۔ آپ کو بتا رہے ہیں ڈی آئی جی ویسٹ نے 3 تھانوں کے ہیڈ محرر معطل کر دیے ہیں۔ ہیڈ محرروں کے خلاف محکمہ جاتی کارروائی شروع کر دی گئی ہے۔ معطل ہیڈ محرروں پر غفلت، لاپرواہی اور کرپشن کا الزام تھا۔ آپ کو بتا رہے ہیں ڈی آئی جی ویسٹ نے 3 تھانوں کے ہیڈ محرر کو معطل کر دیے ہیں۔ ہیڈ محرروں کے خلاف محکمہ جاتی کارروائی شروع کر دی گئی ہے۔ معطل ہیڈ محرروں پر غفلت، لاپرواہی اور کرپشن کا الزام تھا۔ ڈی آئی جی ویسٹ نے 3 تھانوں کے ہیڈ محرر معطل کر دیے ہیں، جبکہ ہیڈ محرروں کے خلاف محکمہ جاتی کارروائی شروع کر دی گئی۔ معطل ہیڈ محرروں پر غفلت، لاپرواہی اور کرپشن کا الزام عائد کیا گیا تھا، جبکہ ڈی آئی جی ویسٹ نے 3 تھانوں کے ہیڈ محرروں کو معطل بھی کر دیا گیا ہے، جبکہ ہیڈ محرروں کے خلاف محکمہ جاتی کارروائی شروع کر دی گئی ہے۔ معطل ہیڈ محرروں پر غفلت، لاپرواہی اور کرپشن کا الزام بھی عائد کیا گیا تھا۔ شہر میں بڑھتے جرائم پر چیئرمین کراچی سندھ تاجر اتحاد حبیب شیخ نے تشویش کا اظہار کر دیا ہے۔ انہوں نے شہر میں پولیس کی نفری اور سی سی ٹی وی کیمروں کی تعداد بڑھانے کا مطالبہ کر دیا۔ شہر میں بڑھتے اسٹریٹ کرائم نے تاجر برادری کو بھی پریشان کر دیا۔ چیئرمین کراچی سندھ تاجر اتحاد حبیب شیخ کا کہنا ہے کہ موجودہ صورتحال میں عام شہری اور تاجر برادری دونوں ہی تشویش کا شکار ہیں۔ کراچی تو اپنی جگہ ہے، یہ کراچی شہر جو ہے یہ منی پاکستان ہے، سندھ کا دارالخلافہ ہے اور 3.5 کروڑ سے زیادہ کی آبادی کا یہ شہر ہے۔ نہ کہ تاجر تو اپنی جگہ پریشان ہے اسٹریٹ کرائم کے، لیکن عوام بھی اسٹریٹ کرائم سے نہیں بچ پا رہی ہے۔ حبیب شیخ نے شہر میں پولیس نفری اور سی سی ٹی وی کیمروں کی تعداد بڑھانے کا مطالبہ کیا، ساتھ ہی کہا کہ صوبائی اور وفاقی حکومتیں شہر میں جرائم قابو کرنے کے لیے اقدامات کریں۔ سندھ پولیس اور ڈی جی رینجر سے میری یہ ریکویسٹ ہوگی کہ خدا کراچی کو سیف سٹی کیمروں کی جو ہے وہ یقینی فراہم کی جائے، پلس اس کے علاوہ جو ہے سیکیورٹی کا جو نظام ہے وہ ہماری یہاں ناقص ہے، اسے بڑھایا جائے۔ بقول یہ کہ جہاں ایس ایچ او اور ڈی ایس پی صاحبان ہوتے ہیں، جب کسی جگہ واقعہ ہو جاتا ہے تو وہ یہ کہتے ہیں ہمیں نفری کا فقدان ہے۔ چلے ہم مان لیتے ہیں اگر آپ کا نفری کا فقدان ہے تو مین چاروں پہ کم از کم سی سی ٹی وی کیمرے تو لگے ہوئے، اس کیمرے کی آنکھ سے جو ہے جرائم کو جو ہے قابو پایا جا سکتا ہے۔ تاجر رہنما حبیب شیخ نے مزید کہا کہ بدامنی کی موجودہ صورتحال کے خاتمے کے لیے رینجرز کو خصوصی اختیارات دیے جائیں۔ کیمرامین قیوم شیخ کے ساتھ حبیب خان، سٹی 21۔ گلشن محمود الحق کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی کے الاٹیز اور انتظامیہ نے پریس کانفرنس کر کے تھانہ سچل کی ایس ایچ او اور مختار کارز پر سوسائٹی پر قبضے کا الزام عائد کر دیا۔ سوسائٹی کے متاثرین کے مطابق ان کی سوسائٹی پر چودھری خالد ایس ایچ او تھانہ سچل، اورنگزیب خٹک اور موجودہ مختار اسکیم 33 اعجاز الحسن نے قبضہ کر لیا ہے۔ متاثرین کا کہنا ہے کہ سوسائٹی کے سیکرٹری کو جھوٹی ایف آئی آر درج کر کے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ متاثرین کے مطابق گلشن محمود الحق کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی باقاعدہ رجسٹرڈ سوسائٹی ہے اور انتظامیہ نے قانون کے تقاضے پورے کرتے ہوئے این او سی حاصل کر رکھی ہے۔ بریک کے بعد آپ کو بتائیں کہ کھلے مائک نے منصوبوں کا بھانڈا پھوڑ دیا ہے۔ خالد مقبول صدیقی کا کنور نوید جمیل سے مکالمہ سامنے آ گیا ہے۔ مزید کہا نوجوانوں کو پیپلز پارٹی کے جھنڈے اتارنے کا ٹاسک دینا ہوگا، ضلع وسطی سے جھنڈے اتارنے ہیں۔ ان کو کہہ دیا تھا آپ نے، وہ جو ینگسٹر جو سارے آئے تھے آج کے ریلی میں شریک ہونے کے لیے، ان کو ہم کی وہ آرگنائزیشن کرنی ہے نا، آرگنائزیشن کرنی ہے ان کی، ذہن میں تھا میرا تو پہلا ٹاسک دینا ہے پیپلز پارٹی کے جھنڈے اتارنے کا ڈسٹرکٹ سینٹر۔ گفتگو آپ نے سنی، آگے بڑھیں آپ کو آگاہ کریں۔ سندھ ہائی کورٹ نے عزیز آباد بلاک 2 میں غیر قانونی پورشن سے متعلق درخواست پر ایس پی سی اے حکام کو غیر قانونی پورشنز کے خلاف فوری کارروائی کا حکم دے دیا ہے۔
हाई कोर्ट में अजीज़ाबाद ब्लॉक 2 में गैर कानूनी पोर्शन से मुतल्लिक दरख्वास्त पर समाअत हुई। दरख्वास्त गुजार के वकील ने मौक़िफ़ अपनाया कि अजीज़ाबाद ब्लॉक नंबर 2 FB एरिया में पोर्शंस बनाए जा रहे हैं। 120 गज पर पोर्शंस खिलाफ कानून है। SBCA को शिकायत की मगर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अदालत ने DG SBCA और दीगर को नोटिस जारी कर दिए। अदालत ने SBCA हुकाम को गैर कानूनी पोर्शंस के खिलाफ फौरी कार्रवाई अमल करके दरामद रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दे दिया। रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद आलमी मार्केट में हलचल मच गई है। खाम तेल 2014 की बुलंद तरीन सतह $100 फी बैरल तक जा पहुंचा है। माहिरीन का कहना है कि खाम तेल महंगा होने से पाकिस्तान का दरामदी बिल बढ़ने से रुपए पर दबाव मजीद बढ़ जाएगा। रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया, आलमी मार्केट में हलचल मच गई। आलमी बाजार में खाम तेल 2014 के बाद $100 फी बैरल के करीब पहुंच गया। रिपोर्ट के मुताबिक यूरोप में जंग आलमी तवानाई की सप्लाई को मुतासिर कर सकती है। यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद लंदन ब्रेंट ऑयल $101 फी बैरल तक पहुंच गया था। लंदन ब्रेंट ऑयल की कीमत 2014 की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। ब्रेंट ऑयल $5.12 महंगा होकर $99.24 फी बैरल पर ट्रेड हो रहा है। अमेरिकी खाम तेल भी $5.18 महंगा होकर $97.30 फी बैरल पर पहुंच गया है। माशी माहिरीन का कहना है कि खाम तेल की कीमतों में मुसलसल इजाफा दरामदी ममालिक के मसाइल में इजाफा कर देगा। शहर कायद में महंगाई का तूफान बरपा है। शेख खुरनूश शहरियों की कुव्वत खरीद से बाहर हो चुकी हैं। रिटेलर्स एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी फरीद कुरैशी का कहना है कि चाय की पत्ती और खाने के तेल की कीमतों में इजाफे के सबब महंगाई बढ़ी है। रिपोर्ट देखिए। महंगाई से अशिया ज़रूरिया आम आदमी की पहुंच से दूर हो गई हैं। तेल, घी, दालों, चीनी और पत्ती समेत दीगर अशिया की कीमतें आसमानों से बातें कर रही हैं। जनरल सेक्रेटरी रिटेलर एसोसिएशन फरीद कुरैशी कहते हैं कि जनवरी से अब तक तेल, घी और चाय की पत्ती की कीमतों में होशरुबा इजाफा हुआ है, जिसके बायस गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 2022 में बेपनाह महंगाई बढ़ी है। ब्रांडेड तेल 440 रुपये तक पहुंच गया है, जबकि माजी करीब में चाय 100 रुपये फ़ी किलो तक महंगी हो चुकी है। तेल जो है वो 400 रुपये तक है और उसके बाद ब्रांडेड जितने हैं वो 440 रुपये में है। इससे महंगाई रोज़ बरोज़ बढ़ रही है। चाय पे 100 रुपये किलो का इजाफा हुआ जो जनवरी में हुआ था। महंगाई की जिनसे शहरी शदीद परेशान है। कहते हैं कि आमदनी महदूद है और महंगाई के बायस अखराजात बढ़ गए हैं। बहुत महंगाई है। 160 रुपये लीटर पेट्रोल कर दिया है। अब मैं रिक्शा चलाता हूँ और सवारी को जब 400-500 देती थी वो कहती है जी अभी 150 लेना है, 200 लेना है। महंगाई की लहर से जहां कारोबारी तबका शदीद मुतासर है, तो वहीं शहरियों के लिए अशिया ज़रूरिया की खरीदारी दुश्वार तरीन मरहला साबित हो रही है। कैमरामैन आगा रफ़ीक, कैमरा बसीम इफ्तिखार, सिटी 21 न्यूज़। रूस के यूक्रेन पर हमले पर बाजार हिस्स में उछाल आ गया है। एक दिन में 100 इंडेक्स में 1302 पॉइंट्स की शदीद मंदी हो गई है। इंडेक्स 44,000 की सतह भी बरकरार ना रख सका। शेयर्स की कीमत कम होने से एक दिन में सरमायाकारों को 204 अरब रुपए का भारी नुकसान हुआ है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार का आगाज 400 पॉइंट्स की कमी से हुआ, जो दिन के अख्ताम पर शदीद मंदी में बदल गया। रूस और यूक्रेन की कशीदगी और साथ ही आलमी मार्केट में खाम तेल की बढ़ती कीमतों ने सरमायाकारों में खौफ पैदा कर दिया। माहिरीन का कहना है आलमी कशीदगी से पेट्रोल की कीमतों में इजाफे ने मार्केट पर मनफी असरात मुरतब किए। देखिए, जो ऑब्वियसली दुनिया भर की मार्केट्स ने इम्पैक्ट लिया है, ऑब्वियसली वॉर लाइक सिचुएशन होती है और सबसे मेन कंसर्न है कि रशिया जो ऑयल का बड़ा एक्सपोर्टर है और ऑब्वियसली अगर वो एक्सपोर्ट्स रुक जाती हैं तो ऑयल की प्राइसेस बढ़ जाएंगी। जो वैसे ही अगर ऑयल की प्राइसेस बढ़ना शुरू हो गई हैं तो इसका इम्पैक्ट ऑब्वियसली हमारी इकोनॉमी में भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हम जो है ऑयल पे ज़्यादा रिलाई करते हैं, हमारी इंपोर्ट है और इसकी वजह से क्या होता है कि लोकली ऑयल की प्राइसेस बढ़ जाती हैं तो आपका इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। ब्रोकर्स कहते हैं मार्केट में शेयर्स की फरोख्त का सिलसिला जारी रह सकता है। देखिए, रशिया और यूक्रेन का इशू बहुत बड़ा है। इनकी वॉर शुरू होने के बाद जिस तरह से हमने देखा कि इंटरनेशनल मार्केटों में इतना ज़्यादा प्रेशर आया और उसकी तपिश हमारी पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में महसूस की गई और हमारी मार्केट 1300 से ज़ायद पॉइंट कमी है। हम देख रहे थे कि हमारी जो लोकल मार्केट है उसके ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इशूज़ हैं, क्योंकि यहाँ पे इजनास बढ़ गया। उसके बाद से क्रूड ऑयल आपने देखा कि 100 से ऊपर चला गया है, गोल्ड के प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं। तो ये सारी सिचुएशन ऐसी है कि हमारी लोकल मार्केट्स को बहुत बुरी तरह से इफेक्ट करेगी। आज मार्केट में शदीद मंदी के बावजूद 34 करोड़ 9 लाख शेयर्स का कारोबार हुआ, जिनकी मालियत 8 अरब 7 करोड़ रुपए थी। कैमरामैन इमरान AK के साथ अयाजाना, सिटी 21। बुलेटिन में आगे बढ़ें, आपको आगाह करें। चाइनीज़ कौंसिल जनरल ली बीजियान ने कहा है कि चाइना ने CPEC के तनाजुर में पाकिस्तान में हेल्थ सेक्टर के लिए भारी फंडिंग की है। दोनों ममालिक के दरमियान हेल्थ में मुख्तलिफ सेक्टर्स में दो तरफा रवाबत रहना चाहिए। I'm also happy to know that during the construction of the whole hospital,
some of the equipment and the construction materials have been imported from China. This demonstrated the friendship and cooperation between our two countries. And the bilateral relations between our two countries not only limited in the politics, economy, culture, and some other fields, but we are expanding in the health sector. गुफ्तगू आपने सुनी। कौम को शऊर व आगाही देने के लिए तालीमी इदारों लाइब्रेरियाँ कलीदी किरदार अदा करती हैं। कुतुब खाने मुल्क की तरक्की और तहजीब को परवान चढ़ाने के ज़ामिन भी होते हैं। बल्दिया कुरंगी ने भी लाइब्रेरियों है कि इंसान का बेहतरीन सरमाया लाइब्रेरी है। कुतुब बीनी का फरोग ही माशरे की तरक्की का जामिन है। पीपी रहनुमा जावेद शेख की निशानदेही पर एडमिनिस्ट्रेटर कोरंगी जावेद कलवर ने लांडी जोन में मौलवी अब्दुल हक लाइब्रेरी का दौरा किया और मरम्मत के अहकामात दिए। तो मैंने आज पर्सनली विजिट किया और इंस्ट्रक्शंस मैंने दे दी हैं अपने बिल्डिंग डिपार्टमेंट को कि इसको फ़ौरन रिपेयर किया जाए। इनकी लाइट्स की भी प्रॉब्लम थी, वो भी हल करने के लिए मैंने ऑर्डर्स पास कर दिए हैं। मुंतजमीन ने माशरे में कुतुब बीनी में कमी पर शिकवा किया कि लाइब्रेरियों में किताबें तो हैं मगर इन्हें पढ़ने वाले बहुत कम हैं। इनकी अक्सरियत भी नावलों की शौकीन है। ज़्यादातर यहाँ पर जो भी आ रही हैं आजकल स्टूडेंट हैं तो वो नावल उनको बहुत चाहिए और स्पेशली जो नदीम हाशिम है, हाशिम नदीम है, उनके नावल की उनकी बहुत डिमांड है। निम्रा अहमद है उनके, तो इन सब की उन्हें बहुत मतलब डिमांड है ना इनकी। और कुछ ऐसे भी होती हैं कि जिन्हें जो है वो इंग्लिश नावल चाहिए होता है, तो हमारे यहाँ ज़्यादातर इस टाइप के आते हैं। पीपल्स पार्टी ज़िला कोरंगी के सदर जावेद शेख ने लाइब्रेरी की तज़ीन व आराइश के इक़दाम को खुश आइंद करार दिया। जब आप कभी लाइब्रेरी में आकर रीडिंग करते हैं, बैठते हैं, तो एक तो लाइब्रेरी का एक माहौल तो बड़ा डिसेंट होता है, वो कहीं नहीं मिल सकता। दूसरा ये कि इसके अलावा किसी तरीके से भी आप रीडिंग कर लें टेक्नोलॉजी से, लेकिन वो डिसेंट माहौल नहीं मिलेगा जो यहाँ मिलता है। कुतुब बीनी के फ़रोग़ के लिए नौजवान नस्ल को लाइब्रेरियों की जानिब राग़िब करके इल्म और शऊर की आगाही का सिलसिला वसी किया जा सकता है। कैमरामैन आसिफ शफी के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21।